Good evening, students, all of you. Am I audible properly to you? Please give me reply in chat box. Is my voice okay for you, everyone? Shall we start the lecture? If my voice is okay for everyone, please give me reply in chat box. Are you getting my voice, everyone? Hello. Sir, you are audible clearly. You can start the lecture. Okay, okay. Thank you, ma'am. So, students, last period we had finished our seventh number chapter of history, and we started a new topic last session. In that session only, eighth number topic, civil disobedience movement. And from this lesson, some points we covered, introduction point, because seventh lesson over and that time we started means in that particular time only that lesson. So today we are going to see that means this lesson descriptively means remaining all points. So first point, as we learned about Dandi March here already we learned this point. Also Peshawar Satyagraha I explained you. So today we have to cover that next point, like Solapur Satyagraha. About the Satyagraha, we have to take information. After that, we have to learn another type. Means इसके पहले हमने जो पढ़ा है ये जो 8 नंबर का चैप्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसमें इंट्रोडक्शन का पॉइंट हमने खत्म किया था और दांडी मार्च और पेशावर सत्याग्रह ये 2 पॉइंट खत्म किए थे। अब आगे जाके हमें धारासना सत्याग्रह के बारे में और सोलापुर सत्याग्रह के बारे में डू यू नो ये बॉक्स भी देखना है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो भी हमें पढ़नी है। पुनः पैक ये भी हमें देखना है। तो यस 8 नंबर का टॉपिक हमने फिनिश किया है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, हमने 8 नंबर का टॉपिक फिनिश किया है शायद। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था मैंने इसके पहले। यस हाँ, सो 9th नंबर वी हैव टू स्टार्ट आई थिंक because I am taking school also, so means something confusion. So I think 8th chapter over already. 9th we have to start. Yes. 9th topic, last phase of struggle for independence. In this point, we learned that introduction, I think. Yes. So we'll start 9th topic. Am I clear?
Okay. So ninth number topic we can start, student. Last phase of struggle for independence. ओके, सो इसके पहले के लेसन में हमने क्या पढ़ा? जो सत्याग्रह हो गए, जैसे कि गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया, जो डिफरेंट डिफरेंट सत्याग्रह जो हो गए उसका नेतृत्व किया। आगे जाके हमने देखा कि जो यंग लीडर्स थे, जैसे कि अम्बेडकर के बारे में भी हमने देखा। पुनः पैक्ट कैसा हो गया अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। उसके पहले लेसन में हमने गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके बारे में भी पढ़ा कि उन्होंने कैसी मांग की थी पूर्ण स्वराज के लिए। वो भी झगड़े थे इस ब्रिटिश सरकार के साथ। और आगे जाके हमें देखना है कि ये इंडिपेंडेंस का लास्ट फेज कैसा था। लास्ट फेज मतलब क्या होगा? फेज मतलब वो हिस्टोरिकल टाइम होगा, ऐतिहासिक जो कालखंड होता है उसको हम हिस्टोरिकल फेज ऐसा बोलते हैं। इधर लास्ट फेज मतलब इस फ्रीडम स्ट्रगल का लास्ट फेज ये था। मतलब ये जो संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष का ये लास्ट और फाइनल और एकदम अंतिम भाग था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यस, तो देखो, in this chapter we are going to study the Quit India movement, underground movement, and the contribution of Indian National Army. इस तीन महत्वपूर्ण जो मतलब ये पॉइंट जो है और ये जो मूवमेंट है इसके बारे में, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, अंडरग्राउंड मूवमेंट हो गई। अंडरग्राउंड मूवमेंट के लिए हमारा सतारा डिस्ट्रिक्ट भी बहुत फेमस है। और जैसे क्रांति सिंह नाना पाटिल ये जो थे ये भी बहुत फेमस थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी अगर हम देखेंगे तो उधर सुभाष चंद्र बोस बहुत महत्वपूर्ण लीडर के नाम है। तो पहले हम देखेंगे कि 1935 का जो एक्ट था, जिसको हम कायदा भी बोलते हैं, आपण त्याला मराठीतून कायदा पण म्हणतो। 1935 साली जो कायदा झाला, हाँ, जो 1935 में जो एक कायदा पास हो गया। This act made a provision for the British governed Indian provinces and princely states to form a federation. According to this act, the working of British governed provinces will be handed over to the Indian representatives. In the princely states join the federation, then they would lose their autonomy. Hence, they refused to join. Therefore, the proposal of federal state in the act was not brought into practice. मतलब स्टूडेंट्स, मैंने इसके जैसे मैंने बोला कि हमने ये आगे का लेसन चालू किया था, तो नाइन्थ लेसन हमने चालू किया था। उस समय मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का पॉइंट लिया था, जैसे कि एक्ट 1935 प्रोविंशियल कैबिनेट, ये पॉइंट्स हो गए थे। मतलब हम अब रिवाइज करेंगे कुछ पॉइंट और आगे जाकर उसके आगे के पॉइंट भी देखेंगे। जैसे कि इधर दिया है ये 1935 का जो एक्ट था वो क्या था, उसमें कौन से प्रोविजन थे? प्रोविजन मतलब नियम, रूल। जैसे कि मराठीमध्ये आपण त्याला नियम म्हणतो, हिंदी में हम नियम बोलेंगे। तो ब्रिटिश गवर्न इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट टू फॉर्म अ फेडरेशन। मतलब ब्रिटिश जो सरकार था वो जिस जिस इंडियन प्रोविंसेस पर, प्रोविंसेस मतलब किंगडम, प्रिंसली स्टेट, जैसे कि सातारा, सांगली, कोल्हापुर, पुणे, इसको भी पहले प्रिंसली स्टेट बोलते थे। प्रिंसली स्टेट मतलब क्या? एक संस्थान बोलते हैं, जैसे कि राज्य होते, किंगडम होते, ऐसा बोलते थे। तो इसमें एक्ट में क्या था? ब्रिटिश लोग तो क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं ये सारे प्रोविंस को। द वर्किंग ऑफ ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस विल बी हैंडेड ओवर टू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब ये जो ब्रिटिश के अंडर जो कुछ प्रोविंसेस है, किंगडम से, वो किसको हैंडेड ओवर करेंगे? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को हैंड ओवर करेंगे और देंगे, उनके हाथ देंगे। इन द प्रिंसली स्टेट ज्वाइन द फेडरेशन, इफ द प्रिंसली स्टेट ज्वाइन द फेडरेशन। मगर प्रिंसली स्टेट ने क्या सोचा कि अगर हमने फेडरेशन ज्वाइन किया, स्टूडेंट देखो फेडरेशन मतलब क्या होता है? जब अभी हमारा केंद्र सरकार जो है वो भारत का हम बोलेंगे और राज्य सरकार जो है महाराष्ट्र का बोलेंगे। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब यूनाइटेड काम करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फेडरेशन बोलते हैं, संघ राज्य बोलते हैं। तो फेडरेशन मतलब है जब ये दो गवर्नमेंट टुगेदर और एक ही से काम करेंगे तो उसको फेडरेशन बोल सकते हैं।
सो हियर प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे और जो किंग थे, जो प्रिंस थे, जो राजपुत्र थे, उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमने ब्रिटिश लोगों का साथ दिया तो क्या होगा, हमारी ऑटोनॉमी तो जाएगी ना, हम हमारी ऑटोनॉमी लूज करेंगे। लूज करेंगे मतलब क्या, मतलब वो गमाएंगे और जाएगी। हमारा फ्रीडम, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, हमारा फ्रीडम तो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने रिफ्यूज किया। उन्होंने जो ब्रिटिश लोगों का कहना था उसको नकार दिया। Therefore, the proposal of federal state in the act was not brought into practice. So we can say here, आपण इथं असं म्हणू शकतो, हम इधर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एक्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और यशस्वी नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे जाके प्रोविंशियल कैबिनेट्स हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमारे भारत देश में जो बहुत सारे जो किंगडम थे, प्रिंसली स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र में भी प्रिंसली स्टेट थे, जैसे कि इधर उधर दूसरे राज्यों में भी प्रिंसली स्टेट थे, मतलब किंगडम थे। सो प्रोविंशियल कैबिनेट मीन्स व्हाट? यस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ द एक्ट ऑफ 1935। आपने इसके पहले पढ़ा है कि 1885 को जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गई उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई बाद में, वो सेटिस्फाइड नहीं थी। ये जो एक्ट था ना, इस एक्ट के बारे में वो सेटिस्फाइड नहीं थे, मतलब उसमें जो सदस्य थे उनको ये मान्य नहीं था। क्या? वो जो एक्ट लाया था वो, जो फेडरेशन का था। बट स्टिल डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट इज ओके। मीन्स उनको मान्य नहीं था, मगर जो इलेक्शन होने वाले एटलीस्ट उसमें भाग तो लेंगे ना, भाग लेने में क्या है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम भाग तो लेंगे। तो 1935 में इलेक्शन भी हो गए। टोटली 11 प्रोविंसेस, मतलब 11, जो हिंदी में 11 बोलते, 11 प्रोविंसेस, मराठीमध्ये आपण 11 म्हणतो, 11 किंगडम किंवा और वी कैन से इन हिंदी टोटली 11 किंगडम जो है, राज्य जो है कंट्री में, इनको क्या हो गया, मतलब इलेक्शन में सहभाग उनका हो गया। अमंग दिस, इसमें से कितने किंगडम को मेजोरिटी मिली और कितने किंगडम ऐसे आए, रिप्रेजेंटेटिव आए उसके। इंडियन नेशनल कांग्रेस गेंड मेजोरिटी ओवर 8 प्रोविंसेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितने प्रोविंसेस पर मेजोरिटी मिल गई? टोटली 8, एंड केम इनटू पावर। एंड रियली इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर केम इनटू पावर इन द अदर 3 प्रोविंसेस रिमेनिंग, बिकॉज 8 + 3 11, नो, 8 को मिल गया और 3 को क्या हो गया? हाँ, इन अदर 3 प्रोविंसेस नन ऑफ द पार्टी कुड अचीव मेजोरिटी। मेजोरिटी नहीं मिली, तो मेजोरिटी नहीं मिली तो सरकार कैसे स्थापन होगा? एंड देयरफॉर मिक्स्ड कैबिनेट वाज फॉर्म्ड। तो क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में अभी कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन मतलब एक कोई पार्टी नहीं आती, तो एक से बढ़कर 2 और 3 ऐसे पार्टी एकत्र म्हणजे येतात, इन मराठी वी कैन से, और इन हिंदी वी कैन से लाइक दिस, वो एक हो जाते हैं। जैसे कि अभी शिवसेना, कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस एक हो गई। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो अभी कोलिशन गवर्नमेंट है। कैबिनेट मिनिस्टर्स of Indian National Congress did useful work for the people, such as release of political prisoners. See, very good thing happened. मतलब हमारे जो थे नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, जो कि मिनिस्टर बन गए, उन्होंने पहले काम कौन सा किया? हमारे जो कुछ ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर थे जेल में, उनको छुड़ाया। इंट्रोडक्शन टू बेसिक एजुकेशन, हमारे बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन चाहिए वो देने की कोशिश की। प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, जो मद्यपान है, जो दवा, क्या बोलते हैं, दारू दवा जो बोलते हैं, उस पर बंदी लाई, प्रोहिबिशन लाया। मतलब जो मद्यपान वगैरह होता है, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल पर बंदी लाया। मेजर्स अंडरटेकन टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ दलित पीपल। दलित मतलब अनटचेबल। उस समय कुछ लोगों को ऐसा दलित बोलते थे और अनटचेबल बोलते थे, तो उनको क्या करने का है, उनकी कंडीशन भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ऐसा भी सोचा। और ऐसा भी उन्होंने नियम किए। मेजर्स मतलब नियम बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं। पासिंग ऑफ एक्ट गिविंग डेप्ट रिलीफ टू द फार्मर्स, मतलब जो शेतकरी होते, मराठीमध्ये शेतकरी आपण त्याला म्हणतो, हिंदीमध्ये किसान म्हणतो, किसान को क्या दिया? लोन से रिलीफ दिया, म्हणजे लोन पासून मुक्तता दिली, कर्ज माफी, और लोन में उनको फॉरगिवनेस दिया। ठीक है, ऐसा ही ऐसा भी काम उन्होंने किया। आगे जाकर क्रिप्स मिशन। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड सपोर्टेड अमेरिका अगेंस्ट जापान। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब उस समय इंग्लैंड ने अमेरिका को सपोर्ट किया। जापानीज आर्मी जो है
वो ईस्टर्न बॉर्डर पर आई इंडिया के। द ब्रिटिश रियलाइज दैट इफ जापान अटैक्स इंडिया देन व्हाट विल हैपन, दे विल नीड कोऑपरेशन ऑफ फ्रॉम द इंडियन पीपल बिकॉज इंडियन पीपल मीन्स दे वर यूजिंग आवर पीपल एज सोल्जर्स। Hence, the British Prime Minister Winston Churchill sent Sir Stafford Cripps to India. उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को इधर भेजा हमारे भारत देश में, क्योंकि अब जापान आक्रमण करने वाला था और इसलिए इंडियन लोगों की मदद चाहिए। 1942 में, मतलब मार्च महीना था, मार्च मंथ था, उसमें क्या हो गया, he put up that proposal of India in front of the Indians, but none of the political party was satisfied with this proposal. हमारे लोग नहीं मतलब satisfy हो गए, वो नहीं थे ये नहीं मानने किया उन्होंने। The Indian National Congress rejected the proposal, क्योंकि हमारी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी वो कौन सी थी, इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल कांग्रेस दैट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं मानने किया, देखो, देयर वाज नो क्लियर मेंशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगर हम आपको मदद करेंगे, अगर हम आपको हेल्प करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऐसा भी इंडियन लोगों ने सोचा ना। सो देयर वाज नो मेंशन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान आल्सो। मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड देयर क्रिप्स मिशन। मींस मुस्लिम लोगों को क्या चाहिए था, सेपरेट स्टेट चाहिए था। कौन सा, पाकिस्तान। उनकी भी मांगनी नहीं, मतलब उनका भी डिमांड नहीं था और इंडियन लोगों का भी डिमांड नहीं था इंडिपेंडेंस का। तो इसलिए हमने ये प्रपोजल जो था हेल्पिंग का वो रिजेक्ट किया। तो सेटिस्फाइड, वी वर नॉट सेटिस्फाइड, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। तो क्या हो गया, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो होने वाला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या संबंध है, क्या रिलेशन हो गया था, ये हम आगे जाकर देखेंगे। चैट बॉक्स में चेक करता हूँ इन बिटवीन। यस, if any problem, any doubt, you can ask. Okay, lesson is going on correctly, no? 9th number. Okay. Any doubt regarding with these 3 points? Any doubt? Okay, no doubt. Okay, very good. So shall I ask one question? Why Indian National Congress rejected that proposal to help British people or British army for that second world war? Why they rejected? What was the reason? Why we rejected? We means that Indian National Congress, why rejected that proposal? Which proposal? To help to that British people against that Japan. यस, वो आगे जाकर हम सोचेंगे ना, आगे जाकर देखेंगे हम। मगर अभी का रीजन बताओ ना, इस पैसेज में जो मैंने अभी बताया उसमें क्या रीजन था, वो मैं पूछ रहा हूँ। आगे जाकर हम देखेंगे इंडियन आर्मी देयर इज वाज देयर और नॉट, दैट विल सी। आगे जाकर वी कैन लर्न अबाउट इट। वेदांत, और जापान, व्हाट जापान? हेलो, please give me answer there. Okay, I will start continuously. मैं ही बताता हूँ। Yes, can you try anybody? Against Japan for second. But here they are saying that Indian rejected their proposal. Yes, Indian means which Indian students? Indian National Congress rejected that proposal. हाँ, yes, there are not written clearly to give freedom. Freedom का spelling गलत है. It's okay, I can understand that. But किसने रिजेक्ट किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, ऐसा है सेंटेंस। ओके, ठीक, ओके। तो क्या हो गया देखो, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन इन यूरोप इन द ईयर ऑफ 1939। ओके, 1939 में ये वॉर चालू हो गया, किधर? यूरोप में। देन वाइसराय लॉर्ड लिन लिथगो declared that India had joined
द वॉर ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश। वेदांत सुनो, मतलब केयरफुली सुनो, अभी का आपका जो डाउट था वो इधर क्लियर हो जाएगा। जो वाइसरॉय थे ब्रिटिश, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि इंडिया ने क्या करना चाहिए, ये वॉर ज्वाइन करना चाहिए। और किसके मतलब किसके लिए, किस किस लोगों के लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए। किसको साइड, किसके साइड में जाना चाहिए, ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश। इंग्लैंड क्लेम्ड दैट इट इज, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, ब्रिटिश मतलब इंग्लिश, इंग्लिश और ब्रिटेन इंग्लैंड के पीपल। इंग्लैंड क्लेम्ड दैट इट इज फाइटिंग टू सेव डेमोक्रेसी इन यूरोप। ये वॉर क्यों क्यों लड़ना है, ये युद्ध क्यों करना है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है यूरोप में वो हमें सेव करनी है, बचानी है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट इफ क्लेम वॉज ट्रू, अगर ए क्लेम, अगर ये आपने जो बताया है, ये जो सत्य, ये जो क्लेम किया है, ये अगर सत्य होगा, देन इंग्लैंड शुड इमीडिएटली ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। तो हमें हमें स्वतंत्र दीजिए, हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है, ऐसा हमने मांग की। इंग्लैंड refused to fulfill this demand, and therefore provincial ministers of Indian National Congress resigned in November 1939। तो क्या हो गया, जब इधर इंग्लैंड ने रिफ्यूज की वो डिमांड हमारी स्वतंत्रता देने की, और आगे जाकर प्रोविंशियल मिनिस्टर थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने रिजाइन किया। मतलब जो वो जो पद था, पर्टिकुलर पोस्ट थी, वो छोड़ी नवंबर 1939। जैसा कि वेदांत ने बोला कि इंडियन जो सैनिक थे, जो सोल्जर थे, इंडिया था, इंडियन सोल्जर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो ऐसा नहीं था, मतलब वो जो सोल्जर थे वो काम कर रहे थे, एज अ जॉब वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द पॉइंट गोइंग ऑन नाउ। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आगे जाकर पॉइंट हमें देखना है कि क्विट मतलब हम जब ठहरते हैं, जब स्टॉप होते हैं, उसको क्विट कहते हैं। मगर इधर क्विट का मीनिंग क्या है, छोड़ो भारत मूवमेंट। मतलब आपको ये भारत देश छोड़ना है और आपके देश में जाना है, ये जो कहना था वो भारतीय लोगों का ब्रिटिश लोगों को था। आफ्टर द क्रिप्स मिशन, the Indian National Congress decided to start an intense movement for attaining independence. Attaining means getting. किसने चालू किया मूवमेंट, ये इंटेंस मूवमेंट चालू किया। इंटेंस मतलब बहुत ऐसा फोर्सफुल, ऐसा मूवमेंट चालू किया। और किस लिए चालू किया, टू गेट इंडिपेंडेंस। किन्होंने किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। किस प्लान के बाद किया, किस मिशन के बाद किया, आफ्टर क्रिप्स मिशन। सो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो वर्किंग कमेटी थी, कार्यकारी जो समिति थी, उन्होंने एक डिक्लेरेशन पास किया, उन्होंने एक ऐसा जाहिरनामा किया। कौन सा जाहिरनामा किया, जैसे कि 14th of July 1945, that was the day where this happened in वर्धा। क्या था इस डिमांड में, क्या था इस डिक्लेरेशन में, द रिजोल्यूशन डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बी एंडेड इमीडिएटली एंड इंडिया शुड बी गिवन इंडिपेंडेंस। इस रिजोल्यूशन में लिखा था कि ब्रिटिश लोगों का रूल इधर से इमीडिएटली जाना चाहिए, अबे के अबे खत्म होना चाहिए, और हमें स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। If this demand was not fulfilled, then the Indian National Congress warned to start a non-violent movement for freedom of India. Not violent, not violent, non-violent. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया, वार्निंग दी, एक इशारा किया कि अगर आप हमें स्वतंत्रता नहीं देते तो हमें नॉन वायलेंट मूवमेंट का जो मार्ग है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे जाकर क्विट इंडिया रिजोल्यूशन कैसा हो गया, डिक्लेरेशन कैसा हो गया। On 7th of August 1945, the session of Indian National Congress was held at गोवालिया टैंक। ये गोवालिया टैंक कहाँ है, गोवालिया टैंक को क्या बोलते हैं, क्रांति मैदान। एक इधर है मुंबई में। कब हो गया, 7th अगस्त। साल कौन सा था, 1942। ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। कौन था प्रेसिडेंट,
मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैंने आपको बताया है 1885 को इस्टेब्लिशमेंट हो गई तेजपाल संस्कृत विद्यालय और स्कूल, ये स्कूल का नाम था। उधर 72 रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट थे। तो मुझे एक ऐसा चार्ट बना, मतलब चार्ट बना आपको आपसे चाहिए। उस चार्ट में क्या चाहिए आपको, साल, ऐसा ईयर्स लिखना पड़ेगा, और उस ईयर्स के आगे ये सेशन कहाँ पर हेल्ड हो गया उस प्लेस का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मुंबई होगा, नागपुर होगा, और उसके आगे जाकर थर्ड कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन। जैसे कि पहले व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, ऐसा लिखना पड़ेगा और प्रेसिडेंट का नाम। अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद, नॉट अब्दुल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। द ब्रिटिश शुड लीव इंडिया, ऐसा बोला था। क्विट इंडिया मीन्स दिस रिजोल्यूशन पास बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कार्यकारी समिति थी उन्होंने पास किया वो जो कोई डिक्लेरेशन था एट वर्धा, और टू बी फाइनली अप्रूव्ड इन मुंबई सेशन ऑन 8th of August. The resolution of Quit India put forth by Jawaharlal Nehru got passed with great majority. मतलब मेजोरिटी मिल गई। ये जो डिक्लेरेशन था, जो डिक्लेरेशन किया था, ये डिक्लेरेशन के लिए मेजोरिटी मिल गई, मतलब बहुत सारे लोगों ने उससे प्रतिसाद दिया। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो करने के लिए इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टार्ट अ नेशन वाइड नॉन वायलेंट एजिटेशन, मतलब नॉन वायलेंट एजिटेशन भी हमें करना चाहिए, जैसे कि मूवमेंट हम बोलते हैं। और लीडरशिप कौन किनकी होगी? ऑफकोर्स महात्मा गांधी जी की। गांधी जी सेड वन सेंटेंस हियर, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्टूडेंट, दिस सेंटेंस इज सो मच इम्पोर्टेंट। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे गांधी जी ने, बापू जी ने, राष्ट्रपिता जी ने कहा है। एवरी वन ऑफ यू शुड from this moment onwards consider yourself a free man or woman and behave like a citizen of free India। क्या है मीनिंग इस सेंटेंस का, क्या है अर्थ इस सेंटेंस का? देखो कि हर एक को, जो मेरे सामने है, गांधी जी बोले, आप आप सभी सुनो, मैं हर एक को बोलता हूं कि अभी की जो मोमेंट है, अभी की जो अवस्था है, इस अवस्था से आपको ऐसा कंसिडर करना चाहिए, आपको ऐसा समझना चाहिए कि आप एक स्वतंत्र नागरिक हो, स्वतंत्र मतलब पुरुष और स्त्री हो, और ऐसा ही आपको बर्ताव करना चाहिए, ऐसा ही आपको कंडक्ट करना चाहिए, बिहेवियर करना चाहिए कि मैं इस भारत देश का स्वतंत्र ऐसा नागरिक हूँ, सिटीजन हूँ। वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, करेंगे या मरेंगे। मतलब हमें स्वतंत्र मिलाना है, नहीं मिला तो हमें स्वतंत्रता के लिए हमारा बलिदान भी देना पड़ेगा। ये जो थॉट दिया वो किसने दिया? एक व्यक्ति थी, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मीन्स राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी मेड एन इंस्पिरेशनल अपील ऑल्सो। इंस्पिरेशनल मीन्स व्हाट? प्रेरणादायक, प्रेरणा दी लोगों को, अपील किया। रिक्वेस्ट, अपील जो होता है वो रिक्वेस्ट की तरह से होता है पब्लिक को। क्या किया? करेंगे या मरेंगे, टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस विद फीलिंग ऑफ डू और डाई, गेट फ्रीडम फॉर योर कंट्री अदरवाइज डाई फॉर द कंट्री। दिस थॉट गिवन बाय महात्मा गांधी। Yes, are you understanding? Chat box I will check. Yes, any doubt? Are you understanding my points, what I am teaching? Yes. Okay. Yes, Vedant, which point? Okay. No doubt. I think no, not understanding. Okay. ठीक है. So can I ask one question regarding with this? How much now over that much point? Yes. Which feeling Gandhiji created in the mind of people, or which inspirational appeal Gandhiji made for the public?
Inspirational appeal. Do or die. Very good, Vedant. Okay. It's okay, Vedant. Huh. Can you tell me which day is the resolution of Quit India movement put forth by Jawaharlal Nehru? And that resolution got majority also by the public, by the people. Which day that? What is the day? Which day of the resolution day of Quit India movement? Means that time majority also got, yes, 8th of August. Very good. Yes. Please, everyone should give answer. I think two students are giving answer only. Okay. Yes. Good. Okay. So beginning of people's movement, student. Now this is the next point. The news of arrest of important leaders of Indian National Congress spread out all over the country. क्या हो गया? हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको क्या किया? अरेस्ट किया, कैद में रखा। किसने? ऑफकोर्स ब्रिटिश लोगों ने। तो ये न्यूज कैसी पहली, जैसे कि फायर कैसा होता है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट फायर, उसकी तरह से पहले। तो क्या हो गया? हमारा पब्लिक एंग्री हो गया। एंग्री मॉब, मॉब मतलब पब्लिक, मॉब मतलब मोबाइल नोट, मॉब मतलब पब्लिक। एंग्री मॉब, मॉब मतलब पब्लिक। हमारे जो लोग थे वो एंग्री हो गए, मतलब बहुत संतप्त हो गए। और संतप्त होकर क्या किया? उन्होंने प्रोसेशंस निकाले। वेरियस प्लेसेस दे मेड प्रोसेशंस। प्रोसेशन मतलब स्टूडेंट जो ऐसा हम प्रभात फेरी आपण काढतो ना शाळेतून, like this means rally, we can say rally. In group they went. They started to go in group. Where? At various places. And started to means give trouble to government. Which government? British government. क्या किया उन्होंने प्रोसेशन निकाल के? इवन दो पुलिस लाठी चार्ज एंड ओपन फायरिंग ऑन द पब्लिक। ब्रिटिश लोगों ने भी क्या किया? ब्रिटिश लोगों का ही पुलिस था। उन्होंने क्या किया? हमारे पब्लिक पर लाठी चार्ज चालू किया, मतलब लाठी से मारना। फायरिंग किया, जैसे कि वो जालियनवाला बाग मैसेकर हो गया था पंजाब में, अमृतसर में। मगर हमारे लोग नहीं डरते थे। बट स्टिल पीपल वेर नॉट अफ्रेड। वो डरते नहीं थे। मारो पिटो कुछ भी करो, क्योंकि हमारे गांधी जी ने एक मंत्र दिया था, एक इंस्पिरेशनल ऐसा थॉट दिया था। कौन सा थॉट था? डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। ठीक है, ऐसा थॉट दिया था। तो इधर क्या हुआ? द एजिटेटर, मतलब जो मूवमेंट्स करते हैं उनको हम एजिटेटर्स बोलते हैं। वन हु इज डूइंग मूवमेंट अटैक्ट सम प्लेसेस। क्या किया? अरे मूवमेंट करना मतलब क्या करना? इन लोगों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? जो गवर्नमेंट जो ऑफिसेस होते हैं और उनके ऐसे महत्वपूर्ण कुछ कार्यालय, मतलब जो ऑफिसेस होते हैं, उस पर अटैक किया। जैसे कि जेल्स थे, पुलिस स्टेशन थे, रेलवे स्टेशन थे, एक्सेट्रा। एक्चुअली वी विल डिस्ट्रॉइंग आवर थिंग्स ओनली बिकॉज सी, हम अगर हम हमारी ही चीजें एक्चुअली ये कर रहे थे, क्या नष्ट कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशों ने तैयार किया था, मगर हम आगे जाके हम ही यूज करने वाले थे। मगर वो जो किया था डेवलपमेंट, वो ब्रिटिश लोगों ने उनके लिए किया था। जैसे कि उनको उधर काम करना था और बिजनेस करना था और कंट्रोल करना था इस इंडिया पर और इस देश पर। मगर ठीक है, उस समय हमारे लोगों ने क्या किया? आंदोलन किए, विच सिंबलाइज द सप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश दैट ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस। मतलब हमारे लोगों ने क्या किया? कंट्रोल लेने का भी प्रयत्न किया और कोशिश की। कोशिश बोलते हैं हिंदी में। इन महाराष्ट्र द यंग एंड ओल्ड स्ट्रगल्ड विद डिटर्मिनेशन एंड बाउंडलेस करेज एट प्लेसेस। सी दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन एग्जाम। मतलब महाराष्ट्र में किधर किधर ऐसे स्ट्रगल हो गए? चिमूर में हो गया, अष्टी में हो गया, सॉरी, यावली में हो गया, महाड़ में हो गया। महाड़ का जो गणपति है वो बहुत फेमस है। महाड़ जो है ना, गणपति बहुत फेमस है। गारगोटी में हो गया, गारगोटी जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है, गारगोटी। इस प्लेसेस में हो गया। और ये इमोर्टल मतलब है। इमोर्टल मतलब जो कि जो हमारे मेमोरी में मतलब लॉन्ग टाइम रहता है, उसको हम इमोर्टल कहते हैं। मतलब वी कांट फॉरगेट इट। इमोर्टल मतलब वी कांट फॉरगेट इट, मीन्स मेमोरेबल, लाइक इट विल नॉट फिनिश। सो आपको मालूम होगा
हमारे महाराष्ट्र सरकार ने अभी क्या किया है, सिलेबस रिडक्शन किया है। तो ये जो पॉइंट है, लेट अस नो, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये विनोबा भावे का जो पॉइंट है वो कट हो गया है सिलेबस से, वो नहीं है। ओके। एंड ये भी पॉइंट क्या हो गया है, कट हो गया है, मतलब ये सिलेबस में नहीं आएगा आपको। ठीक है। गवर्नमेंट ने ही उसको रिडक्शन किया है, लेसन नहीं रिडक्शन हो गए, सिर्फ बॉक्सेस रिडक्शन हो गए हैं। ठीक है, तो ये 2 बॉक्सेस रिडक्शन है, यू कैन मेक क्रॉस ओवर देयर। तो आपको वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपका पढ़ेंगे तो चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आगे जाकर हम देखेंगे अंडरग्राउंड मूवमेंट क्या था। ये अंडरग्राउंड मूवमेंट स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ 1942, जैसे कि हमने देखा 8 अगस्त को छोड़ो भारत वो रिजोल्यूशन पास हो गया मेजोरिटी के साथ। अभी 1942 में ही, मतलब एंड था, मतलब 1943, आगे का साल 43, मतलब 43 इन मराठी आने वाला था। एट द एंड ऑफ द 1942 द पब्लिक मूवमेंट गॉट अ न्यू टर्न, मतलब हमारे लोगों की जो मूवमेंट थी उसको ऐसी नई दिशा मिल गई। टर्न मतलब दिशा मिल गई। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वेंट इनटू हैंड्स ऑफ यंग सोशलिस्ट, मतलब इस मूवमेंट के जो सूत्र है और कोई जो काम है वो यंग सोशलिस्ट के हाथ में चले गए। कौन कौन थे यंग सोशलिस्ट, जैसे कि जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, छोटूभाई पुराणिक भी थे, और उसके आगे जाकर अच्युतराव पटवर्धन भी थे, अरुणा असफ अली, मतलब जो लेडीज थी वो भी थे, यूसुफ मेहर अली थे, सुचिता कृपलानी, ये लेडीज थी, CSM जोशी थे, शिवबाहु लिमये थे, एनजी गोरे थे, यशवंतराव चौहान थे जो कि हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, कराड़ से यशवंतराव चौहान आपको मालूम होंगे। हाँ, वसंत दादा पाटिल थे, इनका भी नाम फेमस है। मगन लाल बागड़ी थे, उषा मेहता, ये लेडीज थे। Such leaders were in the forefront. Student, you have to remember the names of that activist of underground movement. मगर अंडरग्राउंड मूवमेंट क्या था, ये भी सोचना जरूरी है। अंडरग्राउंड मूवमेंट नेमकी होती कशी, ये भूमिगत मूवमेंट क्या थी, भूमिगत बोलते हैं इसे मराठी में और हिंदी में। एक्टिविस्ट डिसरप्टेड, मतलब जो क्या करना है, इनका कम्युनिकेशन ब्रेक करना है, किनका, ब्रिटिश लोगों का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेली कम्युनिकेशन, रेलवे स्टेशन, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो अगर हमने ब्रेक किए तो एक काम ही नहीं कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जो वाहतुक होते हैं, हाँ, जो ऐसे जो वाहन 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 होते हैं, और जो संवाद करने के लिए जो कुछ साधन होते हैं, जैसे कि टेलीफोन हो, हाँ, ऐसे उनको क्या करने का, डिस्टर्ब करने का। एज वेल एज द गवर्नमेंट मशीनरी बाय कॉजिंग द ब्रेक डाउन ऑफ रेलवे रूट्स, कटिंग द टेलीफोन लाइन और टेलीफोन वायर्स, मतलब रेलवे रूट्स में कुछ दिक्कत लाने का, टेलीफोन की वायर कट करने का, ऐसा कुछ जो चल रहा था उसको अंडरग्राउंड मूवमेंट बोलते थे। ब्लोइंग अप ब्रिजेस, ब्रिजेस में कुछ दिक्कत लाने की, एक्सेट्रा। द ब्रिजेस मतलब जो पुल होते हैं, जो ऐसा ब्रिज ब्रिज होता है जो रिवर पर वगैरह। द इम्पैक्ट ऑफ दिस, इम्पैक्ट मीन्स परिणाम, इस मूवमेंट का परिणाम क्या हो गया, और सीन ऑल ओवर इंडिया, एक जगह नहीं होगा, वो किधर किधर हुआ परिणाम, ओवर इंडिया, फुल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। हेमू कलानी इन द सिंध प्रोविंस, हम राष्ट्रगीत में बोलते हैं ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो सिंध प्रोविंस में हेमू कलानी जो थे, उन्होंने क्या किया, हेमू कलानी tried to destroy railway along with his companions. You can see picture of that Aruna Asaf Ali, lady है, अच्युतराव पटवर्धन लेडी है, क्रांती सिंह नाना पाटील सातारा डिस्ट्रिक्ट से, एक्चुअली ये सांगली डिस्ट्रिक्ट से थे, सांगली जिल्ह्यातील आहे ते, सांगली जिला से है। एडे मचिंद्र इनका गांव का नाम है, और इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है स्टूडेंट, पैरेलल गवर्नमेंट में, जैसे कि पैरेलल गवर्नमेंट आगे जाकर हमें पॉइंट देखना है। पैरेलल गवर्नमेंट, तो उसमें उन्होंने क्या काम किया है पैरेलल गवर्नमेंट में, इसके आगे ही पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब प्रति सरकार बोलते हैं। मतलब इन्हें तो बहुत ऐसा तकलीफ हो गया था, ब्रिटिशों ने दिया था। जो ऐसा होता ना, हम क्या, जो हम घर पर जो यूज करते टीन, पत्रा जो बोलते हैं मराठी में, ते पत्रे त्यांच्या ह्याच्यामध्ये पायामध्ये खाली
मीन्स हॅमरिंग, दे हॅमर्ड दॅट, असे पायामध्ये ठोकलेले होते, म्हणून त्याला पत्री सरकार, प्रति सरकार असं म्हणायचे. पॅरलल गव्हर्नमेंट इन इंग्लिश, पॅरलल गव्हर्नमेंट. ओके स्टूडेंट, दिस पॉइंट आई वांट टू फिनिश फर्स्टली, आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टर दिस. सो क्या हो गया इधर देखो, डिस्ट्रॉय किया वो जो सिंध प्रोविंस में है, उन्होंने, उनका नाम क्या था सिंध प्रोविंस में, मैंने अभी बताया, हेमू कलान. When he received the news of passing the railway carrying British troops and supplies, मतलब कंपेनियंस के साथ में उन्होंने जो किया डिस्ट्रक्शन, वो कंपेनियंस भी थे उनके साथ, मतलब उनके साथी भी थे, फ्रेंड्स भी थे. जब उनको पता चला कि इस रेलवे में क्या आ रहा है, ब्रिटिश ट्रुप्स आ रहा है और सप्लाईज, मतलब ब्रिटिश लोगों का ट्रुप्स भी है, ट्रुप्स मतलब जो सोल्जर्स ग्रुप होता है वो, और कुछ चीजें भी है. द कोर्ट पनिश्ड हिम टू बी हैंग्ड टू डेथ, एंड यू नो दैट दिस पर्सन हेमू कलानी गॉट पनिशमेंट. विच पनिशमेंट? डेथ पनिशमेंट. मतलब हेमू कलानी को क्या मिला? फांसी की सजा मिली. ये करने के बाद देखो, डू और डाई, इधर ऐसा जो तत्व था वो हमारे लोग यूज कर रहे थे. रियली कितने देशभक्त थे, देखो कितने देशभक्त थे, मतलब देश की भक्ति कितनी थी मन में, इसके बारे में हमें इधर पता चलता है. भाई कोतवाल सादा दस्ता, अंडरलाइन इट, यू कैन अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक, आप अंडरलाइन कर सकते हैं. भाई कोतवाल का आजाद दस्ता, कर्जत तालुका में, मॉडर्न डे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जनरल आवाली की लाल सेना, नागपुर, नाउ नागपुर, सच ग्रुप्स मेड द गवर्नमेंट. क्यों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गई, क्यों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्थापन हो गई? क्योंकि गवर्नमेंट को हमें क्या बनाना था? हेल्पलेस बनाना था, विटलेस बनाना था. मेड द गवर्नमेंट हेल्पलेस एंड विटलेस फॉर द मंथ्स. विटलेस मतलब हम उन पर बिलीव भी नहीं कर सकते और उनको काम ही नहीं कर देना है हमें, इसलिए हम हेल्पलेस बोलेंगे. मतलब हेल्पलेस होने का किया. हमारी जिस संगठन थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो मूवमेंट थे, उसके लिए उसके कारण वो क्या हो गए? ऐसे हेल्पलेस हो गए. इन मुंबई, विठल विठल झावेरी, उषा मेहता, विठल झावेरी, उषा मेहता एंड हर कंपेनियंस, इन लोगों ने क्या किया? सीक्रेट ट्रांसमिशन सेंटर चालू किया. उस ट्रांसमिशन सेंटर का नाम क्या था? आजाद रेडियो. आजाद रेडियो मतलब वी कैन लिसन. रेडियो के मीन्स यूज क्या था उसका, कि रेडियो में जो कुछ सॉन्ग्स थे वो पैट्रियोटिक सॉन्ग ला गए, देशभक्ति पर ऐसे कुछ सॉन्ग्स, गीत ला गए, जैसे कि वंदे मातरम, हम होंगे कामयाब, patriotic songs were sung on it. News of agitations in the country were broadcasted on it. Patriotic speeches were telecasted. Means not only songs, means सिर्फ गीत नहीं, तो न्यूज ऐसे बातमी, और कौन से तो ऐसे स्पीचेस जो कि बोलते लीडर जो ऐसा स्पीच करते थे, वो स्पीचेस भी उधर रिकॉर्ड किए थे. वो भी सुनना में मतलब लोग सुनते थे, उस रेडियो के यूज थे, ऐसे रेडियो के उपयोग थे. This gave encouragement to the agitators. Such transmission centers operated at Kolkata, Delhi and Pune of some period of time. मतलब इनका भी कुछ तो काम है, ठीक है. आगे जाकर जैसे मैं बता रहा था आपको पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सातारा सांगली इस दो जिले के लिए, दो डिस्ट्रिक्ट के लिए. मतलब इधर जो पहला था ना, सातारा और सांगली एक ही जिला था, एक ही डिस्ट्रिक्ट था. सांगली आगे जाकर सेपरेट हो गए. तो पैरेलल गवर्नमेंट की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई ना, स्थापना जो हुई ना, वो किधर किधर हो गई आप देखेंगे. एट सम प्लेसेस इन द कंट्री ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर ड्राइवन आउट एंड द पीपल्स गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड. लोगों ने लोगों का सरकार चालू किया, ठीक है. उस सरकार को क्या बोलते हैं? प्रति सरकार. और पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब क्या? जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट हमें मान्य नहीं है, तो हमारा जो सेपरेट गवर्नमेंट है वो क्या क्या है? इस गवर्नमेंट को पैरेलल गवर्नमेंट. हम जो हमारी मांगे हैं, हम जो हमारे कुछ प्रॉब्लम है, हम सुलझाएंगे, इसलिए हमारा गवर्नमेंट सेपरेट है. इसका नाम है पैरेलल गवर्नमेंट. किधर किधर फॉर्म हो गया? मिदनापुर बंगाल में, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है. बालिया एंड आजमगढ़ इन उत्तर प्रदेश, पूर्णिया इन बिहार, और हमारे महाराष्ट्र में सतारा जिला और द फेमस फॉर दैट. सतारा जिला में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में क्रांति सिंह नाना पाटिल, इस महान लीडर ने 1942 में ये पैरेलल गवर्नमेंट चालू किया.
क्यों चालू किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का एंड करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट फिनिश करना था, खत्म करना था, और हमारा गवर्नमेंट, हमारा सरकार लाना था, एंड स्टैब्लिश पैरेलल गवर्नमेंट। कुंडल आपको मालूम होगा शायद, अगर आपने, मतलब आपको मालूम होगा, ये जो कुंडल है, ये भी सांगली डिस्ट्रिक्ट का एक प्लेस है, मतलब गांव है, अंडर द लीडरशिप ऑफ क्रांति अग्रणी GD एलियस, मतलब उर्फ, जैसे कि हम आपको घर में सोनू मोनू चिंकी रिंकी ऐसा बोलते हैं, वो आपका निकनेम होता है, और आपका दूसरा नेम जो होता है वो रेगुलर नेम होता है। तो एलियस, मतलब GD एलियस बापूलाल, इन्होंने क्या किया? तूफान सेना, ये सेना चालू की, सेना इस्टेब्लिशमेंट की थ्रू इट्स मीडियम। इस सेना का काम क्या था? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टैक्सेस कलेक्शन करने का, कर जो होता है, टैक्स जो होता है वो कलेक्शन करने का, रेवेन्यू कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस रखने का, मतलब नागरिकों को न्याय देने का, पनिशमेंट टू क्रिमिनल, जो क्रिमिनल है, जो कि चोरी मारी करते, जो कि कुछ अपराध करते, उनको सजा देने का। सच वर्क ऑल डन बाय द पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब हमारा सरकार, हमारा शासन, ऐसा काम इधर पैरेलल गवर्नमेंट का चालू हो गया। ठीक है, तो इधर हम देखेंगे पैरेलल गवर्नमेंट का काम। पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, मीनिंग ऑफ वर्डिक्ट निर्णय, जो निर्णय मिला था पीपल्स कोर्ट से, पैरेलल गवर्नमेंट के जो कोर्ट थे, वो ही लोग मान्य करने लगे, एक्सेप्ट करने लगे। ब्रिटिश लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन टू मनी लेंडर्स, साहूकार जो होते हैं, जो कर्ज देते हैं, कर्जदार जो होते हैं, कर्ज देने वाले होते हैं, वो जो सिस्टम है वो अपोज कर पैरेलल गवर्नमेंट करने लगे। प्रोहिबिशन ऑन लिक्वर, मद्यपान नहीं करने का, जो शराब है, शराब उसको बोलते हैं, हिंदी में शराब बोलते हैं, शराब को बंदी ला गई। हाँ, किन्होंने लाई बंदी? ये जो थे पैरेलल गवर्नमेंट के लीडर। पीरियड ऑफ लिटरेसी, हमारा भारत देश क्या होना चाहिए? लिटरेट होना चाहिए, मतलब शिक्षित होना चाहिए, उनको पढ़ाई करनी चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा मतलब वो वाली नहीं, पनिशमेंट वाली नहीं, स्कूल की शिक्षा। ठीक है। अपोजिशन टू कास्ट डिस्टिंक्शन, मतलब कास्ट के जो डिफरेंसेस होते हैं, जाति धर्म के जो भेदभाव होते हैं, वो नहीं करने। ठीक है, आगे जाकर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव वर्क वाज डन बाय दिस गवर्नमेंट, वी कैन से, उन्होंने जो काम किया वो बांधने का काम किया, कंस्ट्रक्टिव वर्क किया। एंड ड्यू टू दिस गवर्नमेंट वी कैन से हियर, हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो पैरेलल गवर्नमेंट का काम था, ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का इंस्पिरेशन का सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन पब्लिक और आवर पब्लिक। यस, if any doubt is there, we'll check in chat box. Yes, sir, did they have their base underground? Base underground? No, no, underground means what? We should not get in the hand of British. मीन्स हिंदी में हम ऐसा बोलेंगे कि ब्रिटिशों के हाथ में नहीं लगने का। उनको नहीं समझना चाहिए कि हम उनका ही कुछ नुकसान कर रहे हैं। वो टेलीफोन वायर से ट्रैक थे रेलवे के, उस पर जो नुकसान कर रहे हैं ना, वो उनको पता नहीं चलना चाहिए। इसको भूमिगत बोलते हैं, इसको अंडरग्राउंड बोलते हैं। हैव यू क्लियर्ड योर डाउट वेदांत? हेलो, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स सेक्शन। ओके, हाँ, एनी डाउट स्टूडेंट? नो डाउट, ओके। ओके, next point. Before that, I will ask one question. Okay. Can you tell me that parallel government started in different district of the different states? So, can you tell me that this parallel government started in other states also? It means in Maharashtra also started, but in other state also started. So, can you tell me the name of that district in Bengal? In Bengal, where started? In which district? What is the name of that district? Bengal's district name.
Midnapur. Yes, very good. Correct answer. Can you tell me? I told about Maharashtra's one place, Sangli district place, Kundal. In that Kundal, which person started that Tufan Sena? What is the name of that person? He started Tufan Sena over there. GD Elias. Yes. Bapulad. Yes, Bapulad. Okay. Correct answer. Good. Who founded Azad Dasta and where? Who founded Azad Dasta and where? Who founded Azad Dasta and where? Bhai Kotwal. Correct answer. But where? Where? Hmm? Nagpur. Nagpur is wrong answer. Karjat. Yes, correct. But where is Karjat? In which? Karjat is Taluka. But which district? District name. Karjat Raigad district. Yes, Karjat is Taluka and Raigad is district. Very good. Are you understanding the lesson? Yes. Okay. Okay. Yes, chat box. Clear. Okay. Thank you. So now next point. This point I will finish, student. Then we will stop after this point. Importance of Quit India movement. So स्टूडेंट इंपॉर्टेंस मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, हर एक चीज का महत्व होता है ना। तो इस मूवमेंट का क्या महत्व था? छोड़ो भारत जो आंदोलन हो गया, इस चीज का क्या महत्व था? मतलब इस मूवमेंट का क्या महत्व था, ये हम देखेंगे इस पॉइंट में। 1942 में जो मूवमेंट हो गई, टुक अप द फॉर्म ऑफ नेशन वाइड एजिटेशन। मतलब एक कोई एक स्टेट के लिए नहीं था, एक कोई एक स्टेट के लिए नहीं था, और एक कोई एक ऐसा मतलब ऐसा एक कोई भाग के लिए नहीं था। ये जो था वो पूरे राष्ट्र के लिए था। इसलिए इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? नेशन वाइड मूवमेंट। टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारे कुछ उद्देश्य है, उद्दिष्ट है, क्या है? इंडिपेंडेंस मिलाने के। कि कितने इंडियंस के? एक इंडियन का है क्या? 1000 इंडियन का है क्या? 100 इंडियन का है क्या? नहीं, लैक्स ऑफ इंडियन पीपल। मतलब लाखों लोगों ने क्या किया है? लैक्स ऑफ इंडियन मेड अनलिमिटेड सैक्रिफाइसेस। ये ऑब्जेक्टिव्स मिलाने के लिए, ये जो हमारा उद्दिष्ट है साध्य करने के लिए, हमारे लाखों लोगों ने, लीडर्स ने, भारतीय लोगों ने बलिदान दिया है। Many sacrificed their lives. They died over there. The number of people participating in the struggle was so huge that even all the prisons in the whole of the country were not enough to contain them. क्या हो गया? मतलब हमारे इतने लोग पार्टिसिपेट हो गए इस स्ट्रगल में, ब्रिटिश लोगों के जेल भी कम पड़ गए उनको कैद करने के लिए। देखो, मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है जो लता दीदी ने, लता मंगेशकर ने गाया है, आपको मालूम होगा। जो क्या होता है, ए मेरे वतन के लोग, आपको मालूम? ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ये जो सेंटेंस है, इसमें क्या क्या मीनिंग है? कि हमें वो कुर्बानी याद करनी चाहिए जो कि हमारे सोल्जर डाइड हो गए। एक्चुअली जो गाना था वो कारगिल वॉर के बारे में था। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, तब तक की सांस लड़ी जो हर रोया था हिंदुस्तानी। और आगे जाकर एक सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। मतलब क्या?
कि हम इधर दिवाली मना रहे थे और उस समय वो जान की बाजी लगाकर उस सोल्जर्स के साथ लड़ रहे थे। ये युद्ध कौन सा था? कारगिल का था। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सोल्जर का जो लाइफ होता है वो हमें जानना चाहिए, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज सो मच इम्पोर्टेंट because so many people died or sacrificed their life for Swaraj. The number of people participating in the struggle was so huge that even all prisons means in the whole of country were not enough to contain them. नहीं, वो जेल्स कम पड़ गए ब्रिटिश लोगों की। The patriotic songs composed by Sane Guruji, Rashtrasanta Tukroji Maharaj, and others increased the enthusiasm. Enthusiasm. Enthusiasm means that is the interest ऑफ द एजिटेटर्स। मूवमेंट करने वाले लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? जब ऐसा हम सॉन्ग सुनते हैं। अब देखो, मैंने अभी एक सॉन्ग जो बोला वो लता दीदी का था कारगिल युद्ध के बारे में। आपको कुछ तो ऐसा फीलिंग हो गया होगा शायद कि हमारे सोल्जर्स कितने महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। जैसे कि हमें मुंबई में अभी जो 26 नवंबर को जो एक बॉम्ब स्फोट हो गया था, हेमंत करकरे और कुछ ऑफिसर्स थे, कामठे, उनके हम नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ तो उन्होंने किया है हमारे देश के लिए। दिस नेशन वाइड मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑगस्ट क्रांति। इस मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति भी बोलेंगे, जो कि मूवमेंट मतलब इधर टुकड़ोजी महाराज, राष्ट्रसंत और साने गुरुजी, इन्होंने जब ऐसा कुछ सॉन्ग्स दिए और नेशन वाइड दिस मूवमेंट हो गई, तो दिस मूवमेंट मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट को ही हम क्या बोलेंगे? अगस्त क्रांति भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिस मूवमेंट हैपन इन अगस्त मंथ। क्योंकि ये मूवमेंट अगस्त मंथ में हो गई, अगस्त महीने में हो गई। आई थिंक टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, टू बी एंड। सी स्टूडेंट्स, we have to learn remaining points of this lesson after this lecture, after this period. So Indian National Congress, sorry, Indian National Army, Azad Hind Sena, we can say in Marathi. We have to learn this point in the next lecture. Formation of this Indian National Army by Raj Bihari Bose. Achievements of Indian National Army. This point we have to finish. Also, revolt of Indian Navy and Air Force. This point also we have to learn in this particular lesson. Remaining 4 points we will see afterwards. I think time is over. So I will stop here, but you can ask me if any doubt is there. Yes. Taj Hotel, CSMTS. Correct. Very good. Okay. Okay. So shall we stop here? Homework. Yes, homework. So today's homework is that. Homework. Listen the homework. This lesson, particular lesson, last phase of struggle for independence. How much point I taught? No, now page number 40, 41, 42. That particular point, till that particular points, you have to make notes. Write notes based on that particular points. Okay? Have you understood the homework? Okay. So thank you all of you. Have a nice evening for everyone. Yes.